Welcome back to my channel all about law. Today I am back with another video, another important topic from Sale of Goods Act, that is unpaid seller. Now whenever we talk about contract of sale, there are two types of sellers, full seller and unpaid seller. Okay, whenever there is any sale transaction, whenever there is a contract of sale, the seller will either receive the full amount or he will not receive the full amount. Okay, दो ही conditions arise होंगी, या तो seller के पास पूरा consideration receive हो जाएगा या फिर उसे कुछ consideration receive नहीं होगा. तो if the seller has received the entire consideration related to the goods, entire price of the goods, if he has received at the time of sale, then he will be known as a full seller. कोई भी amount pending नहीं है. But if any amount is pending, if any amount he has not received from the buyer with respect to the goods, then he will be considered as an unpaid seller. Is that clear? Now who is a seller? ये मैं मेरे previous videos में हम discuss कर चुके हैं. The person who is transferring the property in goods to the buyer for a consideration known as price is known as a seller. Okay, seller मतलब हर वो person जो ownership transfer कर रहा है goods की किसे buyer को for a consideration known as price. तो सेलर का मतलब ओनर ऑफ द गुड्स भी हो सकता है या फिर एनी एजेंट अपॉइंटेड बाय द सेलर भी हो सकता है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेलर कौन होगा, ओनर ऑफ द गुड्स भी होगा, ओनर ऑफ द गुड्स ही होगा. बहुत बार मेनी टाइम्स द सेलर अपॉइंट्स their authorized agents to sell the goods on their behalf. ओके, तो ऐसे केसेस में वो जो ड्यूली अपॉइंटेड एजेंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सेलर. तो सेलर का मतलब एवरी टाइम ओनर ऑफ द गुड्स हो ऐसा नहीं है. ओके, ये सब हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं अनपेड सेलर की. जैसा कि नाम ही बोल रहा है अनपेड सेलर. Unpaid seller is defined under section 45 subsection 1 of the Sale of Goods Act 1930. Unpaid का मतलब है the amount is not yet paid. Okay, so unpaid seller के अंदर दो cases arise होते हैं. When whole price is not paid, okay, whenever there is any sale contract and if the whole of the price is not paid or any part of the price is not paid to the seller, then he will be considered as an unpaid seller. अब अगेन सेल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो या तो कैश में हो सकते हैं या फिर क्रेडिट में हो सकते हैं. अगर कैश में हुए हैं एंड पूरा अमाउंट अभी तक सेलर ने रिसीव नहीं करा है या फिर पार्शियल अमाउंट ही रिसीव करा है तो उस बैलेंस अमाउंट के लिए उसे हम अनपेड सेलर बोलेंगे. लेकिन अगर सपोज सेल क्रेडिट पर हुई है, अगर क्रेडिट सेल हुई है तो क्या क्रेडिट सेल के केस में भी वो सेलर अनपेड सेलर बोला जाएगा? नहीं. क्रेडिट सेल के केस में सपोज आज ट्रांजेक्शन हुआ है एंड अगर चेक इशू हुआ है, ठीक है, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है, ठीक है, मैंने सपोज एक को रेफ्रिजरेटर सेल करा है फॉर 50,000 एंड मैंने उसे 2 महीने के क्रेडिट पे वो रेफ्रिजरेटर सेल किया है, तो टिल 2 months आई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अनपेड सेलर. वाई? बिकॉज 2 महीने का तो क्रेडिट पीरियड मुझे मिला हुआ है. आई विल बी कंसिडर्ड एज एन अनपेड सेलर इफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 months ए इज नॉट मेकिंग द पेमेंट, और ठीक है, या तो ए ने मुझे पेमेंट नहीं करा 2 महीने के बाद भी तो मैं अनपेड सेलर हो जाऊंगी. और सेकंड केस, इफ ए इज इशूइंग अ चेक टू मी, ओके, एंड मैंने वो चेक जाकर बैंक में डिपॉजिट करा है एंड द चेक गेट्स डिसऑनर्ड, तो उस केस में भी मैं अनपेड सेलर हो जाऊंगी. Is that clear? तो unpaid seller means when whole of the price of the goods is unpaid or any partial amount is unpaid. And second case, if the goods are being sold on credit, okay, or if the goods are being sold on cash also, and if any bill of exchange or any negotiable instrument or any check is being raised for the same, and if you are depositing it in the bank and it gets dishonored due to any reason, then the seller will be considered as an unpaid seller. Is that clear? तो अनपेड सेलर जो होगा उसके पास में कुछ राइट्स अवेलेबल होंगे. ठीक है, क्यों राइट्स अवेलेबल होंगे? बिकॉज ही इज द अग्रीव्ड पार्टी. ठीक है, उसने गुड सेल करे हैं एंड इट इज हिज राइट टू रिसीव द एंटायर अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द बायर बिकॉज ही इज ट्रांसफरिंग द ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ द गुड्स. तो सेलर के पास ये राइट होगा कि उसे पूरा कंसिडरेशन ऑन टाइम रिसीव हो जाना चाहिए. बट इफ द सेलर इज नॉट रिसीविंग द अमाउंट ऑन टाइम एंड इफ द सेलर इज अनपेड सेलर, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज एन अग्रीव्ड पार्टी. एंड सिंस वो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास कुछ रेमेडीज अवेलेबल रहेंगे, उसके पास कुछ राइट्स अवेलेबल रहेंगे अगेंस्ट द बायर. अब वो क्या राइट्स होंगे वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे.